آج ویو 360 میں جارج فلوئڈ کی موت پر پولیس کے خلاف احتجاج میں کئی علاقوں کی پولیس بھی شامل. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا امریکی صدر کے تازہ ترین اقدامات ان کی ووٹرز بیس کو متاثر کر سکتے ہیں؟ جو کلین ایئر اب اس ٹائم پہ مل رہی ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بہت اچھی ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی بہت اچھی ہے. اور کیا کورونا کی وبا کا کوئی مثبت اثر بھی ہو سکتا ہے؟ ماحولیات کی تازہ ترین رپورٹس کہتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی تحویل میں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد کئی پولیس اہلکار نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر گھٹنے ٹیک رہے ہیں. 2 ہفتوں سے یہ احتجاج جاری ہے. کئی اور ریاستوں میں پولیس مظاہرین کے ساتھ احتجاج میں بھی شامل ہوئی. چلتے ہیں امریکی دارالحکومت واشنگٹن کی قریبی ریاست ورجینیا، جہاں ایک کاؤنٹی میں پولیس اہلکار اپنے کام میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں. یہ تبدیلیاں ہیں کیا؟ جانیں گے اس رپورٹ میں. ہمیں اس بارے میں سوچنے اور بات کرنے کا زیادہ وقت نہیں ملا. وہ چاہتے تھے کہ ہم گھٹنے ٹیک کر ان کے ساتھ دعا کریں. کیوں نہیں؟ منیاپولس پولیس کے ہاتھوں جارج فلوئڈ کے ساتھ جو سلوک ہوا اسے دیکھنا مشکل ہے. اس کی موت کے بعد جب مظاہرے ہوئے تو پولیس اہلکاروں کی ایسی تصاویر سے جن میں وہ ایک گھٹنا ٹیکے ہوئے ہیں منقسم عوام کو کچھ تسکین پہنچی. ریاست ورجینیا کے علاقے مناسس میں ایک مظاہرے کے بعد شیرف گلین ہل اور ان کے اہلکاروں نے یکجہتی کے اظہار کے لیے گھٹنے ٹیکے. منیسوٹا میں جو کچھ ہوا وہ میرے لیے یقینی طور پر ایک سانحہ ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ اس پیشے سے منسلک کوئی بھی ایسا شخص کچھ کرے، کیونکہ اس سے ہم سب کی بدنامی ہوتی ہے. ہم نے خدمت کرنے اور تحفظ فراہم کرنے کا حلف لیا ہے. اس کام میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کس کی خدمت کرنی ہے اور کسے تحفظ دینا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جارج فلوئڈ کے واقعے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تربیت کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے جو نسلی تعصب ختم نہیں کر سکے. مگر پرنس ولیم کاؤنٹی کے ایک پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ پولیس کے لیے کچھ سبق سیکھنے ضروری ہیں. میں ایسے شعبوں کی شناخت کر سکتی ہوں جن میں ہمیں مختلف ثقافتوں کے بارے میں آگہی بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہم اس حوالے سے کچھ تربیت فراہم کر سکتے ہیں. میرا شاید آپ جیسا پس منظر نہ ہو مگر میں سننے کے لیے تیار ہوں. جب آپ اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. مگر مظاہرین کہتے ہیں کہ پولیس اور سیاہ فام لوگوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی تمام کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں. گھٹنے ٹیکنا اچھا قدم ہے مگر انہیں انصاف چاہیے. ہماری کمیونٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے نسلی تعصب کا کافی تجربہ ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں مشکوک ہونے کے باعث پولیس تواتر سے روکتی ہے. انہیں روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. پھر بعد میں سوچا جاتا ہے کہ انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے کیا الزام لگایا جائے. احتجاج اور وبا اکٹھے نہیں چلتے. پھر بھی مظاہرین اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر باہر نکل رہے ہیں تاکہ جارج کی موت ضائع نہ جائے. کچھ تو بدلنا چاہیے. کسی کو تو بدلنا ہوگا. اگر اس کے لیے مجھے بیمار ہونا پڑا تو ہو جاؤں گی. ہسپتال سے علاج کراؤں گی اور پھر واپس یہیں آؤں گی. میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. بس لوگ امن چاہتے ہیں اور میں امن کے لیے کوشش کرتی رہوں گی. پرنس ولیم کاؤنٹی میں لوگوں کی آواز سنی جا رہی ہے. کاؤنٹی کے بورڈ نے نسلی تعلقات کو بہتر کرنے اور ثقافتی تنوع کے لیے نیا کمیشن تشکیل دیا ہے اور اس کے لیے شیرف گلین ہل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ایک چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ وہ سب لوگ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہمیں انہیں عزت و احترام دینا ہوگا. تو شاید ہمیں کمیونٹی کو بتانا ہوگا کہ ہم تحفظ فراہم کرتے ہیں مگر ہمیں آپ کا احساس بھی ہے. ویرونیکا بالدراس اگلیسیس کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں قانون کی بالادستی اور عملداری پر ایک دھواں دھار تقریر کی اور اس کے بعد قریبی چرچ کے سامنے بائبل ہاتھ میں پکڑ کر ایک تصویر بھی بنوائی جس پر ایک طرف تو آزاد خیال مسیحی ان میں غصے کی لہر دوڑ گئی جبکہ دوسری جانب صدر کے وفادار ووٹر سمجھے جانے والے قدامت پسند ایونجلیکل کرسچنز نے لاقانونیت کے مقابلے میں اسے قانون کی فتح قرار دیا. کیا صدر ٹرمپ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں اب بھی قدامت پسند ووٹروں پر انحصار کر سکتے ہیں؟ جانیں گے اس رپورٹ میں.
सेंट जॉन गिरजाघर व्हाइट हाउस से एक ब्लॉक की दूरी पर है, जहां गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने ये तस्वीर बनवाई थी, लेकिन उनकी बाइबल के साथ ली गई ये तस्वीर अब हर जगह मशहूर हो गई है। So I went there because somebody suggested. मैं इसलिए वहाँ गया क्योंकि किसी ने मुझे मशवरा दिया कि ये अच्छा आइडिया है और मुझे भी ये ख्याल पसंद आया। मैं नहीं जानता कि वहाँ आसपास लोग थे या नहीं। ट्रंप के यहाँ आने की वजह से पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन को ताकत के बल पर इस जगह से हटाया, जिसे बाज़ हलकों ने तनकीद का निशाना बनाया है। ये हमारी मुकद्दस जगह, रिवायात और रूहानी अलामात का नाजायज इस्तेमाल है। ट्रंप के क़दामत पसंद मसीही वोटर्स उनके इस इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। सदर ट्रंप के गिरजाघर के सामने खड़े होने में कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि चर्च के सामने खड़े होने से अमेरिका भर में मौजूद गिरजाघरों के साथ उनकी जानिब से यकजहती का इजहार और तमाम गिरजाघरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़म का आदा करना था। सभी क़दामत पसंद मसीही सदर ट्रंप के कानून की अमलदारी के तरीके के हामी नहीं हैं। टेलीविजन के जरिए तबलीग करने वाले पैट रॉबर्टसन ने सरजनिश करते हुए इस सूरत हाल में फौज की धमकी के बजाय मुजाहिरीन के साथ हमदर्दी के लिए कहा है। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जायजे के मुताबिक मार्च में 80% के मुकाबले में सफेद फार्म क़दामत पसंदों में मई के दौरान सदर ट्रंप की हिमायत में 15% कमी आई है। ताहम वबा और अवाम में बेचैनी के बावजूद मजमूई तौर पर सदर ट्रंप की हिमायत में मामूली कमी देखने में आई है। मुअम्मर अफराद और देहाती इलाकों की खवातीन को निकाल दिया जाए तो इन्हें बाकी रिपब्लिकन्स की मुकम्मल हिमायत हासिल है। खास तौर पर ये खवातीन अवाम की बेचैनी पर सदर ट्रंप के रद्दअमल की वजह से मुतामिल हो रही हैं, लेकिन वो लोग जो सदर के हामी हैं और जो उन्हें पहले ही सपोर्ट करते हैं, यानी क़दामत पसंद मसीही, सफ़ेद फार्म दही मजदूर, नौजवान, ये सब कहीं नहीं जा रहे। 2016 में 81% सफेद फार्म क़दामत पसंदों ने सदर ट्रंप को वोट दिया। ओहदा संभालने के बाद इस ग्रुप की सियासी तरजीहात का ख्याल रखकर सदर ने उनकी हिमायत यकीनी बना ली है। Unborn children have never had a stronger defender in the White House. सदर ट्रंप नवंबर में मुमकिना तौर पर दोबारा इन्हीं वोटरों पर इन्हसार करेंगे। जब बात अदालत की पेशियों की आती है तो वो आइन पसंदों के हामी, वो मजहबी आज़ादियों के और इसराइल के हामी और अस्कात हमल के खिलाफ हैं। तो मैं समझता हूँ पहले के मुकाबले में उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन वबा की इस जारी सूरत हाल की वजह से आने वाले 5 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। प्यू रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो रिपब्लिकन जमात की जानिब झुकाव रखते हैं और ये समझते हैं कि सदर ट्रंप कोविड-19 से बेहतरीन अंदाज में निमट रहे हैं, उनकी तादाद मार्च में 83% से घटकर अब 77% रह गई है। इस हफ्ते जब जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर मुजाहिरे जारी हैं, सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप सेंट जॉन पॉल दोम की ज़ियारत पर बकौल व्हाइट हाउस यादगारी लम्हात के लिए गए, लेकिन किसको और क्या याद करने गए इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई। पैट्सी विदास्क्वारा के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका भर में होने वाले इस एहतजाज के बारे में और इसके अलावा दुनिया भर में जो कोरोना वायरस की वबा है उसके बारे में जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/voaurdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अवाम परेशान है, लेकिन इस पूरी परेशानी के बावजूद क्या आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से किसी चीज़ पर कोई मुस्बत असर भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा है। और शहरों में लॉकडाउन और कम भीड़, कम ट्रैफिक की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में कमी रिकॉर्ड की गई है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसमें कराची की हवा की क्वालिटी और शोर की सतह में तकरीबन 40% बेहतरी आई है। आइए जानते हैं कि तियारा अनीस की रिपोर्ट में कि इन तब्दीलियों ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर क्या असर डाला है। इस्लामाबाद की रिहायशी अफशा ने कोरोना वायरस की फैलाई अफसरदगी से निपटने के लिए घर पर किचन गार्डन बनाने का इरादा किया है, लेकिन वो कहते हैं कि इन हालात में भी इन्हें एक चीज़ से बहुत सुकून मिल रहा है और वो है शहर का बदला हुआ माहौल। बहुत अरसे के बाद मैंने इस्लामाबाद को एक ऐसा खूबसूरत शहर देखा जहाँ पे मुझे तितलियाँ बहुत ज़्यादा
नज़र आने लगी, जहाँ पे मैं घर से जब निकलती हूँ बनी गाला में, तो रास्ते में मुझे बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो नज़र आते हैं, और लगता है कि उन जानवरों का, परिंदों का डर भी ख़त्म हो चुका है और आपको रियल में नेचर की ट्रू फीलिंग होती है। जिस तरह बहुत रश होता था, बहुत ज़्यादा गार्बेज होता था, पोल्यूशन होती थी, जगह जगह कचरा नज़र आता था, वो सब चीज़ें यकदम से कोविड-19 के पर्सपेक्टिव में कहीं गायब होकर रह गई हैं। माहौल में ये ताजगी शहरियों का गुमान नहीं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान के तमाम शहरों की एयर क्वालिटी में 65% तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ इस्लामाबाद में ही फिजा 56% साफ हो गई है। जो क्लीन एयर अब इस टाइम पे मिल रही है वो ना सिर्फ इंसानों के लिए बहुत अच्छी है बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत अच्छी है, और इसी तरह से हम देखते हैं कि इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बड़े अच्छे पॉजिटिव असरात आते हैं। जिस तरह एलर्जी के जो इश्यूज़ थे पहले, वो एयर पोल्यूशन की वजह से और फिर एलर्जी का भी जो मौसम चल रहा होता था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हेल्थ के बन रहे थे लोगों को। इस दफ़ा उसकी निस्बत शायद कम हुई होगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह के जो केमिकल्स थे वो कम थे एयर के अंदर। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये माहौलियाती तब्दीली बिल्कुल आर्जी नौइयत की है, या इस लॉकडाउन के नतीजे में पैदा होने वाली इस बेहतरी को कायम भी रखा जा सकता है। सिटी प्लानर्स और CDA के अरकान के मुताबिक इसके लिए शहरियों को अपने रवैये बदलना होंगे और हुकूमत को बेहतर मनसूबाबंदी करना होगी। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हम सिटीज़ में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की अगर बात करूं कि हमारी जो पैसेंजर कार्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है कि एक गाड़ी में एक बंदा जाता है। आप देखें कि कितना फ्यूल कंज्यूम होता है। अगर हम यहाँ पे कोई इफ़ेक्टिव मास ट्रांजिट सिस्टम ला सकें, जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो उसके बाद गाड़ियों की तादाद कम हो जाती है तो फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। एक और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ हम जा रहे हैं कि 2030 में हम ऑलमोस्ट 50% हम इलेक्ट्रिक कार्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। उससे भी फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, तो उससे भी इंशाल्लाह एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी। अफशन जैसे शहरी जहां परिंदों की चहचहाहट और जंगली हयात की वापसी से खुश हैं, वहीं इस बात के ख्वाहिशमंद भी हैं कि ये मस्बत तब्दीली किसी तरह मुस्तकिल बन जाए। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। एक ऐसे वक्त में जब कोविड-19 की वबा के बांग्लादेश के जनूब में कायम रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के कैंप्स में आसार नजर आना शुरू हुए हैं, यहाँ काम करने वाली इंसानी इमदादी तंजीमें खुद को बदतरीन हालात के लिए तैयार करती नजर आती हैं। यहाँ काम करने वाले सेहत आमा के नुमाइंदों के मुताबिक इलाज की सहूलियात में बेहतरी लाई गई है, ताहम उन्हें डर है कि वबा के बड़े पैमाने पर फैलने की सूरत में शायद ये सहूलियात कम पड़ जाएं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में कायम रोहिंग्या महाजर कैंप के बाहर कोविड-19 के मरीजों को अलग थलग रखने के लिए एक आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है। इमदादी इदारे गुंजाइश से ज़्यादा भरे हुए कैंप्स के 8,60,000 रोहिंग्या महाजरीन और करीबी इलाकों के 4.5 लाख बांग्लादेशी शहरियों के लिए तिब्बी सहूलियात में इजाफा कर रहे हैं। कैंप की सूरत हाल यहाँ कोरोना के फैलाव के लिए इंतहाई मौजू है। लोग ज्यादा हैं, जगह कम, लोग एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं, सफाई की बहुत कमी है। गुज़श्ता 5 महीनों में इलाके में 5 नए करंतना सेंटर्स और इलाज के सेंटर्स खोले गए हैं और मजीद की मनसूबाबंदी की जा रही है। इमदादी कारकुनान को उम्मीद है कि जुलाई तक उन्हें 1100 नए बिस्तर मिलेंगे, मगर कोविड-19 के तेज फैलाव के मुकाबले में ये तादाद कम पड़ सकती है। इस बात पर शदीद तशवीश पाई जा रही है कि हमारे पास जो केसेस आएंगे उनके लिए गुंजाइश कम हो जाएगी। साफ पानी और साबुन जैसी चीजें कैंप्स में फरावानी से पहुंचाई जा रही हैं, मगर पानी के पंप और गुस्ल खाने इज्तमाई इस्तेमाल के लिए हैं। अगर आपको घर पर हाथ धोने के लिए पानी चाहिए तो आप बर्तन लेकर उस वाटर पंप पर जाते हैं जो कम्युनिटी के लिए है। क्या ये पानी का पंप पहले किसी ऐसे ने इस्तेमाल किया होगा जिसने अपना हाथ मुंह पर रख कर खांसा हो और फिर पंप को हाथ लगा दिया हो? दुनिया भर में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले के लिए वबा से बचाव का हिफाजती सामान कम हो रहा है, जिसके बायस तिब्बी कारकुनान को कैंप्स के नजदीक कायम कोविड के इलाज के सेंटर बंद करने पड़ सकते हैं। अगर हमारे पास इतना हिफाजती सामान नहीं होगा कि हम मरीजों को महफूज तरीके से देख सकें, तो फिर हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं रहेगा।
cannot operate. गुज़श्ता साल वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये वीडियो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल में कोविड-19 का बहरान शुरू होने से बहुत अरसा पहले बनाई थी। इसमें महाजरीन ने यहाँ मिलने वाली सहूलतों की तारीफ की थी, लेकिन इमदादी इदारे कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस तेजी से फैला तो कम वसाइल होने की वजह से हो सकता है उन्हें जिंदगी और मौत जैसे फैसले करने पड़े और तिब्बी इमदाद जमा करना हो। I definitely imagine that मैं यकीनन सोच सकता हूं कि डॉक्टर्स को ऐसे मरीजों में इंतखाब करना होगा जो बेहतरीन देखभाल के बावजूद बच नहीं पाएंगे, और वही तिब्बी इमदाद ऐसे को दी जा सकती है जिसके बचने की उम्मीद ज्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसे फैसले ना करना पड़े। बहुत सी रुकावटों के बावजूद इमदादी तंजीमें पुरअज़्म हैं कि वो अपने मरीजों की मदद के लिए जितना हो सका जरूर करेंगे। डेव ग्रोनबॉम के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अफ्रीकी बर-ए-आज़म के मुल्क तंजानिया से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ोहरा हसन को कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने बेटे को महफूज रखने के लिए और ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ रही हैं। ज़ोहरा का 5 साला बेटा हयान महमूद तंजानिया के उन अंदाज़न 11,000 बच्चों में शामिल है जो कि हर साल सिकल सेल की बीमारी लेकर पैदा होते हैं। खून के बिगाड़ पर मुश्तमिल इस मर्ज़ से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी पैदा हो जाती है, और यही वजह है कि हयान उन लोगों में शामिल है जिन्हें कोरोना होने की सूरत में शदीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंजानिया उन 3 टॉप अफ्रीकी मुल्कों में से है जिसमें बच्चों की खासी बड़ी तादाद सिकल सेल की बीमारी के साथ पैदा होती है। इन बच्चों को कोरोना से खास तौर पर खतरा लाहक है। 5 माह की उम्र से इसमें सिकल सेल की अलामात जाहिर होना शुरू हो गई थी। ज्यादातर बच्चों की तरह इसकी उंगलियों और जोड़ों में सूजन आ जाती थी और ये यकसा नहीं होती थी क्योंकि सूजन किसी भी तरफ होती थी। मुझे याद है कि ये जब तकरीबन 2 साल का था तो बहुत बीमार पड़ गया। जब भी कोई इसे हाथ लगाता तो इसके जिस्म में दर्द होता था। इसके डॉक्टर को बहुत तशवीश थी क्योंकि उसने हर नुस्खा आजमा लिया था, लेकिन इलाज से इसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने दुआ करनी शुरू की, खुदा तो मेरे बेटे को ले जाएगा, लेकिन मेहरबानी से पहले इसका दर्द दूर कर दे। मैंने सिर्फ ये मांगा और वहीं रुक कर इसको देखने लगी। सिकल सेल खून के बिगाड़ का मर्ज है जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। हर साल ये बीमारी लेकर पैदा होने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 3,58,000 है। इनमें से 75% बच्चे अफ्रीका में पैदा होते हैं। मौसम की वजह से स्कूल के दिनों में इसे अक्सर आम फ्लू हो जाता है। जब से कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया, मैंने इसे बाहर जाने से सख्ती से मना किया हुआ है। सिकल सेल से मुतासरा बच्चे दिल और सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से सिकल सेल के मरीजों के लिए कोरोना वायरस का मर्ज मोहलिक साबित हो सकता है। अफ्रीका में सेहत आमा के प्रोग्राम कम होने के सबब सिकल सेल की बीमारी से मुतासरा 90% बच्चे 18 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि अगर इसे कोरोना वायरस हो गया और इसे अलग रहना पड़ा तो क्या कोई जानता है कि सिकल सेल और कोरोना वायरस का कैसे इलाज किया जाता है। कभी कभार तो जी चाहता है कि ये आलमी वबा ख़त्म होने तक मैं अपने बेटे को लेकर किसी दूर दराज जगह पर चली जाऊं। मेरा अपना कारोबार है। मैं एक करीबी यूनिवर्सिटी में ताज़ा जूस फराहम करती हूँ, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं। फिलहाल तो कारोबार बंद है और इसकी वजह से मेरी 80% आमदन मुतासिर हुई है। मैं इस दौरान अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हूँ।
Kwa hiyo imeaffect kwa kiasi kikubwa sana tu. हमें इल्म है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन मैं ये यकीन नहीं करना चाहती कि सिकल सेल की वजह से मैं इसे खो दूंगी. मुझे यकीन है कि ये लंबी उम्र पाएगा, इसकी शादी होगी और मेरे पोते पोतियां होंगी. Huyu itafika miaka fulani atapotea kwa ajili ya huu ugonjwa. हनीमून अलजाबरी के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका. कोरोना वायरस के आलमी बहरान की वजह से यूं तो इंसानी मेलजोल बहुत हद तक महदूद हो के रह गया है, लेकिन अमरीकी रियासत वर्जीनिया के सफारी पार्क ने हिफाजती उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले शायकीन की कतारें लंबी हो रही हैं, जो समाजी फासला बरकरार रखना भूले नहीं हैं. सफारी पार्क की सैर कराने के लिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट. महीनों बाद आखिरकार इन जानवरों को देखने के लिए कुछ शायकीन पहुंचे तो चिड़ियाघर में जैसे सुख का सांस लिया गया. यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, ये मुकम्मल तौर पर बंद था, एक फर्द भी नहीं था. इस चिड़ियाघर का एक हिस्सा रोअर्स ज़ूफारी तो अब भी कोरोना शटडाउन की वजह से बंद है और वहाँ के जानवर शायकीन से महरूम हैं. ताहम चिड़ियाघर के सफारी पार्क का मंजर इसके बिल्कुल बरक्स है. कोरोना शटडाउन शुरू होने के बाद पहली बार यहाँ गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त दी गई है. इससे पहले यहाँ सिर्फ बस टूर्स लाए जाते थे. कोरोना बहरान से मुतालिक पाबंदियों की वजह से चिड़ियाघर में पैदल आमदोरफ्त मुमकिन नहीं थी, तो इन अहकामात के एहतराम के लिए हमने यहाँ ड्राइव थ्रू सफारी का मुनफरिद आइडिया सोचा. ये ड्राइव थ्रू सफारी दीगर अमरीकी रियासतों से भी शायकीन को मुतवज्जो कर रहा है और ये तजुर्बा मुकम्मल तौर पर इंसानी मेल जोल के बगैर है. अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीद कर अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से इसका मजा लें. ये दिलचस्प ड्राइव थ्रू है. बच्चों ने मजा किया और सब खूब हंसे. ये जबरदस्त तजुर्बा था. बच्चों के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि वो ऐसे जानवर यहाँ देख पाते हैं जिसे उन्होंने शायद इससे पहले ना देखा हो. यहाँ शायकीन 9 मुख्तलिफ इक़साम के जानवर देख सकते हैं, जैसे जंगली भैंसे, लामा और हिरन वगैरह. 2 माह घर में कैद रहने के बाद जैक और मैक्स इन जानवरों को देखकर बहुत पुरजोश हैं. मेरे ख्याल में ये अच्छा आइडिया है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ तफरीह भी फराहम की जाए. चिड़ियाघर की मुनज़्ज़म सारा ग्रेग के मुताबिक दोबारा खुलने के बाद अब रोज़ाना तकरीबन 200 गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं और बच्चों के अलावा ये जानवर भी बहुत खुश हैं. खास तौर पर लामा और गधे गाड़ी वालों के हाथों से रोजाना खा पी रहे हैं. सब जानवर बहुत खुश हैं क्योंकि वो अपने आसपास इंसानों के आदी हैं. चिड़ियाघर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक केयर कहते हैं कि यहाँ कारोबार अच्छा है, लेकिन दूसरा हिस्सा बंद होने की वजह से आमदन फिर भी कम है. वो कोरोना से बचाव के कवायद पर अमल दरामद करते हुए उस हिस्से को खोलने के लिए भी पुरुमीद हैं, जब भी वर्जीनिया में बतदरीज मजीद कारोबार खुलने की इजाज़त मिलेगी. साकिबुल इस्लाम के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका. एक दिहाई से अमेरिका में लाखों अफराद के ढूंढने के बाद आखिरकार $10 लाख मालियत का खजाना ढूंढ लिया गया. 2010 में अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले मालदार मुसन्निफ फॉरेस्ट फैन ने कैंसर से सेहतयाब होने के बाद एक संदूक में सोने के सिक्कों के अलावा जवाहरात डालकर रियासत न्यू मैक्सिको और मोंटाना के दरमियान फैले रॉकी माउंटेन्स के इलाके में कहीं छुपा दिया था. फिर 2010 में लिखी गई अपनी आपबीती में उन्होंने एक नज़्म शामिल की. इस 24 सतूर की नज़्म में 9 इशारों के ज़रिए उस जगह की निशानदेही की गई. इन 10 सालों में लाखों अफराद ने इन निशानियों की मदद से इस मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि कुछ जान की बाजी भी हार गए. इनाम जीतने वाले ने अब तक अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की, लेकिन मुसन्निफ फॉरेन फेस्ट को संदूक ढूंढ लेने का तस्वीरी सबूत ज़रूर भेजा है. ये था आज का व्यू 360. स्टे सेफ, क्योंकि पाकिस्तान में कंटिन्यूसली कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है. आप किस तरह अपने आप को महफूज रख रहे हैं, आप हमें लिख सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर. ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.